which is TCP, and the other one is IP. Now, in transport layer, what are the protocols that are used? Layer Eh, application. In the transport layer of TCP IP model, which protocols are used? Internet protocol. Inter uh, In- Internet protocol. Internet protocol is used in the network layer, the internet layer. In the transport layer, there are two protocols that are used. One is TCP and the other is TCP and UDP. yes. So TCP is for connection oriented or connection less services. Transmission control protocol and UDP is user datagram protocol. Lovely. Now you tell me that TCP, which is transmission control protocol, that is for connection oriented services or connection less services. oriented. Correction oriented. Connection oriented services, and UDP is Oriented protocol. Connectionless, ma'am. connection less services. Less. Yes, yes. So transport layer. Sorry, the TCP IP model has how many layers? 4 layers. Can you all name the layers? Internet layer, अरे transport layer, अरे application layer. ल- go in logical order at least. Randomly कुछ भी मत बोलो. Go in logical order from the beginning. First is Ma'am, internet layer. पहले ही इंटरनेट लेयर आ जाता है. application, First is application. ना? application layer. Yes, application layer is where your message generates from the source, right? Then yes, after application layer, Transport layer. transport layer. After transport layer, Internet. internet layer, and after internet layer, Host to network. host to network layer. Lovely. Good. Who's that who answered? Ma'am, Fareen. Sorry. Fareen. Very good. Good, Fareen. So in the uh, in the TCP/IP model, there is no clear-cut distinction between services, interfaces, and protocols. जैसे मैंने OSI model में तुम लोग को बताया था, अलग से if you remember the diagram, they had pointed out the services, the interfaces, and the protocols. There was clear distinction between the three terminologies. But in TCP/IP ऐसा कुछ भी नहीं है. Now, in this session, we will understand what is the difference between the two models, that is OSI model and TCP/IP model. See, OSI model na, it is majorly a very good reference model. ओके मतलब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से रेफर करना है अगर तो ओएसआई मॉडल बहुत अच्छा है. लेकिन टीसीपी आईपी क्या प्रैक्टिकली यूज हुआ है, वो प्रैक्टिकली यूसेज के लिए बहुत अच्छा है. ठीक है, क्योंकि इसकी प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे हैं टीसीपी आईपी के. अभी आई टेल यू ऑल, जस्ट हैव अ लुक एट दिस टेबल on the screen. Let's go point by point. The first point, like I told you, OSI model distinguishes clearly between service, interface, and protocol, but TCP/IP does not. Now, if you all remember, I had told you all what is a service, what is an interface, and what's a protocol. Do you all remember any? I mean, I had given you all an example also. Do you all remember? Jesse, okay, I'll tell you. Services, let's say, for example, printf. So that's the service name. What service that you can print? Okay. Interface would be what goes in the parameters as parameters. That is interface. Interface is basically it tells the processes about it how to access it. मतलब अगर मुझे print command use करना है तो वो मैं कैसे use करूं, मुझे print के brackets में क्या लिखना है, parameters क्या pass करने हैं, that is interface. समझा? Yes, ma'am. Yeah. yes, ma'am. And protocol मतलब
द लॉजिक बिहाइंड इट, यानी प्रिंट एफ अगर सर्विस है तो प्रिंट एफ सर्विस को यूज करने के लिए मतलब वो फंक्शन को एज अ सर्विस यूज करने के लिए बैकएंड पे कोड लिखा होगा, देयर हैज टू बी सम लॉजिक ना, एंड दैट लॉजिक इज नोन एज द प्रोटोकॉल. ओके, यू ऑल रिकलेक्टेड, याद आया? Yes, ma'am. Yeah, so service, interface, and protocol. So service is the name of that service. Interface is how to access that particular service. What should be the parameters? That is interface. And protocol is what's the logic behind this particular service. What lines of code are being written for this particular service? How is it making it possible to give print service to the above layers? Okay, that is protocol. Now in TCP/IP, there is no such distinction between service, interface, and protocol. And if you see the principles of software engineering, it's better that you have a clear distinction between these technical terminologies. Okay, but then TCP/IP में इतना theory था नहीं, प्रैक्टिकल, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था, TCP/IP के रिसर्चर्स ने प्रोटोकॉल्स पहले बना दिए. प्रोटोकॉल्स बनाने के बाद में उन्होंने उन प्रोटोकॉल्स को लेयर में मतलब उन लेयर्स का नाम दे दिया. तो पहले प्रोटोकॉल्स बने थे TCP/IP में, OSI में पहले लेयर्स बने थे. ठीक है, समझा इतना? Yes, ma'am. हाँ. Okay. Now let's have a look at the second point. Protocols are better hidden and can be replaced relatively easily as technology changes. Whereas in TCP/IP, protocols are not hidden and thus cannot be replaced easily. Replacing IP by a substantially different protocol would be virtually impossible. See, what happened was, in OSI model, like I told you, the layers were decided first and then the protocols came in. Okay, now here in OSI model क्या होता है ना, प्रोटोकॉल्स हिडन है. मतलब अगर सपोज फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी चेंज हुई भी तो हम लोग प्रोटोकॉल्स में चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन TCP/IP में हम प्रोटोकॉल्स में चेंजेस नहीं कर सकते. सो बेसिकली TCP/IP जिस नेटवर्क के लिए बनाया गया था वो नेटवर्क के लिए ही वो यूज होगा. सी क्या हुआ था, OSI मॉडल जब बना था ना, तभी उन लोगों को ऐसा भी लगा था कि मतलब हर एक ये जो कमिटी थी जिसने OSI मॉडल बनाया है, दैट कमिटी हैड एक्सपेक्टेड दैट दिस पर्टिकुलर मॉडल विल बी यूज्ड, एज इन they assumed that every country will have its own network and which will be run by the government of that particular country. तो OSI ने कभी इंटर नेटवर्किंग पर ध्यान दिया ही नहीं और TCP/IP ने इंटर नेटवर्किंग पर ध्यान दिया. मेजर मतलब इंटरनेट को यूज करने के लिए अगर इंटरनेट जैसा बड़ा सा नेटवर्क है, which connects multiple WANs and all, for that TCP/IP model was used. And जैसे जैसे एडवांसमेंट्स होते गए टेक्नोलॉजी में, पहले क्या था, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क था. तो OSI मॉडल जब बनाया था ना, तब उसका डेटा लिंक लेयर क्या ध्यान में रख के बनाया था कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क रहेगा, सिंपल नेटवर्क ना, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. लेकिन धीरे धीरे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क आया. अभी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जब आया तो पॉइंट टू पॉइंट उसको सपोर्ट नहीं करेगा, इसीलिए OSI ने क्या किया, एक सब लेयर हैक कर दिया, अंदर एक और सब लेयर डाल दिया और थोड़े प्रोटोकॉल्स उन लोगों ने चेंज किए. लेकिन उसमें क्या गड़बड़ हुई, डिजाइनर्स के पास उतना नॉलेज था नहीं, और जैसे जैसे लोगों ने प्रैक्टिकली OSI यूज करना शुरू किया तब उन लोगों को पता चला कि मेरे एक्चुअल स्पेसिफिकेशंस में ये OSI फिट नहीं हो रहा है. इसलिए OSI मतलब वाज काइंड ऑफ not so successful than TCP/IP model because of its flaws in the protocols and the layers. लेकिन TCP/IP के साथ ऐसा नहीं हुआ. तभी लगभग वही टाइम पे TCP/IP भी मार्केट में था. अभी TCP/IP ने क्या आगे का सोच के बनाया था, उन लोगों ने क्या सोचा, इंटर नेटवर्किंग सोचा. OSI ने क्या सोचा, एक छोटा लैंड नेटवर्क के बारे में, कनेक्शन, एक छोटा सा कनेक्शन के बारे में सोचा. इसलिए OSI
उतना ज्यादा यूज नहीं हुआ जितना टीसीपी/आईपी जो आज भी यूज होता है। ठीक है, समझा? Yes, ma'am. अभी Yes, ma'am. हाँ, अभी देखो टीसीपी/आईपी क्या करता है, बड़े बड़े वैन्स को कनेक्ट करता है ना? वैन से लैंड्स, लैंड्स वैन, ऐसे मल्टीपल लैन एंड वैन को कनेक्ट करता है, मैन को कनेक्ट करता है। तो अभी अगर मैं ब्लूटूथ के लिए टीसीपी/आईपी मॉडल यूज करूं, तो विल इट बी, आई मीन, विल इट बी जस्टिफाइड? नो, ब्लूटूथ इज व्हाट, यू आर कनेक्टिंग वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना फोन Yes. ये लैपटॉप से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट किया। अब इसके लिए मेरे को टीसीपी/आईपी का कनेक्शन क्यों चाहिए जो जो इतने बड़े वैन को कनेक्ट करता है? सो टीसीपी/आईपी मॉडल है ना, नॉन टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल्स पे कभी फिट ही नहीं हुआ। मतलब जैसे इंटरनेट जैसा बड़ा है, बड़ा नेटवर्क है, या वैन जैसा बड़ा नेटवर्क है, तो टीसीपी/आईपी यूज हो रहा है। लेकिन अगर ये ऐसे छोटे छोटे कनेक्शंस है जो वन टू वन बेसिस पर है, यानी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस है, उसके लिए टीसीपी/आईपी यूज नहीं हो सकता। वेरी सिंपल, है ना? इट्स लॉजिकल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझा कि नहीं समझा? देखो, अभी अगर कोई चीज किसी बड़े काम के लिए बनाई गई है, तो उसको मैं एकदम छोटे काम के लिए क्यों यूज करूं ना? अगर एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मुझे करना है, तो उसके लिए मैं टीसीपी/आईपी नेटवर्क इंस्टॉल करूंगी। No. या जबकि तुम लोग को ये पता है कि टीसीपी/आईपी मॉडल को हम कब रेफर करते हैं? जब नेटवर्क बड़ा हो, जब इंटर नेटवर्किंग हो, तब के लिए टीसीपी/आईपी यूज होता है। अगर छोटा मोटा नेटवर्क है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, तो वो ऐसा यूज कर सकते हैं। समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's see the third point. OSI reference model was devised before the corresponding protocols were invented. I told you this. पहले उन लोगों ने क्या बनाया? लेयर्स बनाए। उसके बाद में वो लोगों ने प्रोटोकॉल्स बनाए। ठीक है, समझा? इतना समझा? पहले उन लोगों ने क्या किया? लेयर्स का नाम दिया, लेयर्स को नाम दे दिए, 7 लेयर्स विल बी यूज्ड। ठीक है, और वो 7 लेयर्स में क्या क्या होगा ये बाद में हुआ, यानी उसका लॉजिक बाद में डिसाइड किया, पहले उसका नामकरण कर दिया। समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, this ordering means that the model was not biased toward one set of protocols, a fact that made it quite general. Okay. The downside of this ordering, downside means disadvantage of this ordering, is that designers did not have much experience with the subject and did not have a good idea of which functionality to put in which layer. I told you, मतलब लेयर बना दिए, और ये लेयर्स का भी नाम है ना, बनाने का जो था, वो डिसीजन जो था ना, वो मोर ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन था रादर देन टेक्निकल। ठीक है, उन लोगों ने 7 लेयर्स बना दिए। 7 लेयर्स बनाने के बाद में हर एक लेयर क्या क्या काम करेगा, यानी उसका लॉजिक वो डिसाइड किया उसके बाद में। तो इससे तो क्या हो गया कि वो प्रोटोकॉल स्पेसिफिक मॉडल नहीं बना, यानी इट वाज नॉट बायस्ड टुवर्ड वन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये जनरल मॉडल बना था। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या था? डिजाइनर्स के पास में नॉलेज नहीं थी। उन लोग को ऐसा लगा था कि हर एक कंट्री का अपना अपना नेटवर्क रहेगा, तो उन लोग ने इंटर नेटवर्किंग पर ध्यान नहीं दिया, और उनको ये भी नहीं मालूम था कि कौन सी फंक्शनैलिटी कौन से लेयर में डालनी चाहिए। क्योंकि इसी की वजह से ओएसआई में अगर आप लोग देखो ना, तो सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, वो खाली है। लेकिन नीचे के लेयर्स, डेटा लिंक लेयर, ये ओवरफुल है, इसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है। और अगर तुम लोग देखो ना, एक और डिसएडवांटेज ओएसआई लेयर में, ओएसआई मॉडल में क्या है, जैसे एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एड्रेसिंग, ये सब जो फंक्शनैलिटीज है, ये रिपीट हो रही है 2-3 लेयर्स में। ठीक है, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब इफ यू आस्क एनी गुड पर्सन, दैट पर्सन वुड रेकमेंड कि एरर डिटेक्शन आप हायर लेवल्स पे कर लो ना, बार बार नीचे के लेवल्स में रिपीट करने की जरूरत क्या है? जब ऊपर आप एक बार चेक कर ही रहे हो एरर के लिए, तो नीचे इतना मल्टीपल टाइम्स चेक करने की क्या जरूरत है? तो ये सब फ्लॉज थे ओएसआई मॉडल में। ठीक है, समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी
TCP/IP देखो, the protocols came first and the model was just a description of the existing protocols. There was no problem with the protocols fitting the model. They fit perfectly. क्यों perfectly fit हुआ? क्योंकि पहले उन लोगों ने लॉजिक बनाया ना, इसीलिए लॉजिक बनाने के बाद में वो सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर ही निकाल दिया. क्यों? क्योंकि उनको ऐसा है कि एप्लीकेशन लेयर में ये सारा काम हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है 2 लेयर्स की. और उन लोगों ने लेयर्स के बारे में नहीं सोचा, उन लोगों ने लॉजिक पहले सोचा. ठीक है. द ओनली ट्रबल वाज दैट द मॉडल डिड नॉट फिट other protocol stacks. Other protocol stacks means like I gave you one example of Bluetooth. ठीक है. अभी ब्लूटूथ एप्लीकेशन के लिए TCP/IP नहीं चल सकता है. ठीक है. TCP/IP किसके लिए चलेगा? जिनको TCP और IP का रिक्वायरमेंट है, उन्हीं वही एप्लीकेशंस के लिए TCP/IP मॉडल यूज होगा. जैसे कि इंटरनेटवर्किंग, वैन टू मैन, वैन टू लैन, लैन टू मैन, ये सब कनेक्शंस के लिए, बड़े बड़े कनेक्शंस के लिए, इंटरनेट के लिए TCP/IP यूज होगा. ठीक है, समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Then okay, so another difference is that OSI में 7 layers है, TCP/IP में 4 layers है. We all know that, right? Then next is OSI model supports both connectionless and connection oriented communication in the network layer, but connection oriented communication in the transport layer. See, in TCP/IP model उल्टा है. सिर्फ नेटवर्क लेयर में सिर्फ एक चीज है जो एक ही सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कनेक्शन लेस है. लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर में दोनों है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस. ये मैंने अभी क्वेश्चन तुम लोगों को पूछा था when I had started with this session, that the transport layer TCP/IP has 2 protocols. One is the transport layer of TCP/IP model has 2 protocols. One is TCP, and the other is UDP, and UDP. UDP. Correct? TCP किसके लिए? कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए. और UDP किसके लिए? कनेक्शन लेस के लिए. तुम लोग सिर्फ ये चीज याद रखो बस, बाकी तुम लोग को अपने आप याद आ जाएगा. TCP/IP मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 प्रोटोकॉल्स है, इतना ही याद रखो. बाकी का वो पॉइंट तुम लोगों को पूरा याद रखने की जरूरत ही नहीं है. जैसे तुमको ये याद रहेगा ना कि ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 प्रोटोकॉल्स है, TCP और UDP. TCP फॉर कनेक्शन ओरिएंटेड and UDP for connectionless. So in TCP/IP model, transport layer supports 2 types of services, connection oriented and connectionless, but only one, which is connectionless in the network layer. Whereas OSI में उल्टा है, नेटवर्क लेयर में दोनों सर्विसेज है और ट्रांसपोर्ट लेयर में सिर्फ एक ही सर्विस है, और वो क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन इन ट्रांसपोर्ट लेयर. So this point you only remember that the transport layer of TCP/IP has 2 services, which connectionless and connection oriented. तो बाकी का पॉइंट तुमको समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा, ये याद हो जाएगा. ठीक है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. OSI model is considered as a good reference model. I told you it is a very good model to be referred to. मतलब देखो, हम लोग जब भी कोई चीज रेफर करते हैं तो हम लोग उसको ब्लाइंडली A to Z यानी पूरा का पूरा उसको कॉपी नहीं करते ना. We take some part of it. Okay? OSI क्या, अगर आप सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर निकाल दो तो बाकी मॉडल अच्छा है, लेयर्स अच्छे हैं. लेकिन तो यू नो OSI कैन बी यूज्ड एज अ वेरी गुड मॉडल, एज अ वेरी गुड थियोरी टू बी रेफर्ड टू. Whereas TCP/IP is considered more reliable and its protocol, because its protocols are good, because and it's widespread. मतलब ऐसा हुआ था उस वक्त कि OSI को भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन और किया भी था, बट तब तक TCP/IP मॉडल इतना ज्यादा मार्केट में स्प्रेड हो गया था कि किसी को OSI में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं था, इसलिए वो OSI कभी चला ही नहीं, TCP/IP चलते गए. ठीक है? मतलब OSI को भी आप इंटर नेटवर्किंग में कर सकते थे, उसको भी एडवांस कर सकते थे, किया भी था, बट पीपल डिडंट वांट टू इन्वेस्ट बिकॉज इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन में ही फेलियर हो गया था OSI का.
इसीलिए people didn't want to invest further in OSI model, and TCP/IP was already famous that time. ठीक है, और एक और एडवांटेज ये था कि TCP/IP was linked to यूनिक्स, और यूनिक्स तभी एकेडमिशियंस में बहुत ज्यादा फेमस था, मतलब उसका बहुत अच्छा रेप्यूटेशन और गुडविल था. बाकी OSI को क्या एक पॉलिटिकल मॉडल समझ के लोगों ने उसको, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, धिक्कार दिया था, यू नो, दैट सम पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज इसका जो रिसर्च कमेटी थी, दे वर यूरोपियन कम्युनिटी से थे, यूरोपियन पॉलिटिकल पार्टी से थे. लेटर ऑन वो लोग यूएस पार्टीज में, यूएस कम्युनिटी में मिले थे, बिकॉज उसका प्रेजेंटेशन वगैरह वहां हुआ था. लेकिन उसका जो स्टार्ट था वो यूरोपियन कंट्री का ही था, पॉलिटिकल रेफरेंस था. इसीलिए लोगों को ऐसे लगा कि यू नो दीज पॉलिटिशियंस दे आर जानबूझ के ट्राइंग टू forcing us to use this particular model because ये politicians ने बनाया है, you know, उनकी research committee है, and so people, लोगों ने और उससे मतलब और use नहीं किया उसको because they linked it to politics. Got it? समझा क्या? Yes, ma'am. कुछ समझा या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is the difference between OSI and TCP/IP model. And next, okay. All right. Let's go quickly to critique of the OSI model and its protocol. मैंने लगभग थोड़ा बहुत तो तुम लोगों को explain कर ही दिया है. फिर भी 4 points में ये divided है. Critique यानी क्या? The disadvantages, the bad points of OSI model, ठीक है, and its protocols. First point that they have given is bad timing. Second is bad technology, bad implementation, and bad politics. See, bad timing मतलब, can you all see the diagram on the right hand side? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now this theory, it is called as apocalypse of the two elephants. Can you see? These are the two elephants. This is number 1, research, and this is number 2, $1 billion investment. Okay, this is known as apocalypse of the two elephants. Okay. Now, what is this diagram telling us? This diagram is telling us the amount of activity surrounding a new subject. Okay. Now, when the subject is discovered, you know, initially when the subject is discovered, there is lot of research activities which goes on. ठीक है, जैसे जैसे मतलब स्टडी बढ़ती जाती है, मतलब एक्टिविटी के बारे में एक्टिविटीज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका रिसर्च बढ़ते जाता है. और रिसर्च इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशंस होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, रिसर्च पेपर्स निकालते हैं. तो इसका क्या मतलब है कि व्हेन एनी सब्जेक्ट इज डिस्कवर्ड, ठीक है, व्हेन एनी सब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड, there are lot of research activities which starts. What are those research activities? Conferences, meetings, ठीक है, discussions, research papers, ये सब चालू हो जाता है. All right, so it goes high, है ना, research activities goes high. After a while this after some time, while this activity subsides, मतलब corporations, they decide to invest in these activities or in these researches. जब वो लोग इन्वेस्ट करने का सोचते हैं और रिसर्च जब तक सबसाइड होता है, ये बीच का जो ट्रो है, इसको स्टैंडर्ड्स बोलते हैं. ये टाइम पे ये जो रिसर्चर्स है ना, इन लोगों को ये टाइम स्टैंडर्ड्स लिखने चाहिए. मतलब दे हैव टू कम अप विद स्टैंडर्ड्स ड्यूरिंग दिस टाइम, दिस ट्रो. ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम. अभी अगर ये टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट रहा तो क्या होगा? स्टैंडर्ड्स क्रश हो जाएंगे. और ओएसआई के साथ वही हुआ. ठीक है, उसके स्टैंडर्ड्स क्रश हो गए. ठीक है, इतना समझा क्या? एपोकैलिप्स ऑफ टू एलिफेंट्स. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
All right. So, the standards, they are written, the standards are written in this trough. Now, if the standards are written too early before the research is finished, the subject will be not understood properly. राइट अगर स्टैंडर्ड्स आपने बहुत जल्दी लिख लिए रिसर्च खत्म होने के भी पहले तो सब्जेक्ट समझेगा ही नहीं रिजल्ट विल बी बैड एंड इफ इट इज रिटर्न टू लेट if the standards are written too late then what will happen the companies have already made investments and they have already started using it I mean they are not going to look at your standards why because they've already made the investments so your standards should not be written too early neither it should be written too late it should be written at the proper time with and using the proper time duration okay got it if this interval between the two elephants is very short, that time what will happen is the standards will get crushed. And with the OSI, this is what had happened. I told you that some of the research companies, some of the research institutes have started using it. और जब उसका standard set नहीं था, वो OSI मतलब क्या हुआ था ना पहले जैसे जैसे लोगों ने यूज करना थोड़े बहुत लोगों ने भी यूज करना शुरू किया उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारे आए तो पहला ही इंप्रेशन गलत पड़ गया ठीक है इसीलिए फिर बाद में लोगों ने कभी यूज ही नहीं किया उसको और तभी क्या हुआ था टीसीपी आईपी वाज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट और उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स हो चुके थे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट्स दे स्टार्टेड यूजिंग टीसीपी आईपी तो एक बार सपोज एक कम्युनिटी ने टीसीपी आईपी यूज करना शुरू किया फिर उसमें मतलब उन लोगों ने यूज किया उनका फेल नहीं हुआ लेकिन जब उन्होंने कंपेयर किया ओएसआई से ओएसआई के इम्प्लीमेंटेशन फेल हुए थे तो वो लोग क्या ओएसआई खरीदेंगे क्या नेक्स्ट टाइम नहीं वो लोग टीसीपी आईपी को ही उन लोगों ने रिवाइव किया मतलब अपडेट किया फिर सेकेंड लेवल यूज किया टीसीपी फिर से रिवाइव अपडेट किया फिर से यूज किया तो क्या हुआ टीसीपी आईपी अच्छा होते गया और ओएसआई बेचारा अच्छा हुआ लेकिन यूज नहीं किया गया उसको समझा Yes, ma'am. fine so that is bad timing of what of the standards that were written मतलब स्टैंडर्ड्स क्रश हो गए उनको टाइम उतना मिला नहीं और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स जितना हो गया था कॉर्पोरेशंस ने उन लोगों ने फाइनल जजमेंट पास कर दिया कि अच्छा नहीं है वी विल नॉट यूज इट ठीक है सेकेंड इज बैड टेक्नोलॉजी नाउ सी बैड टेक्नोलॉजी में क्या है मॉडल और प्रोटोकॉल्स में थोड़ी बहुत गड़बड़ है ओएसआई में 7 लेयर्स की जरूरत नहीं है सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर में ज्यादा कुछ होता नहीं है आई टोल्ड यू दैट the decision of these 7 layers was more political than technical so session and presentation layer it's nearly empty hardly anything happens data link and network layer इसी जगह पे एकदम full है overfull है तो बैलेंस नहीं है ठीक है दूसरा क्या है ये कॉम्प्लेक्स है अगर तुम इसकी थियोरी खोल के देखोगे देयर यू आर गोइंग टू बी यू विल गो क्रेजी आई मीन देयर इज सो मच ऑफ थियोरी रिटन अबाउट ओएसआई सो इट्स आल्सो कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कॉम्प्लेक्स second another thing is that I told you the functions like addressing error control flow control ये redundant है मतलब repeat हुआ है यानी दो तीन लेयर्स में उसको डाला है बाकी जरूरत नहीं है ठीक है उसको अगर आप एक हायर लेयर में डाल दो तो इनफ है बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है सो दिस इज बैड टेक्नोलॉजी व्हाट आर द बैड टेक्नोलॉजी पॉइंट्स हियर दैट 7 लेयर्स का कुछ काम नहीं था सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर नियरली एम्प्टी है डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर ओवरफुल है if you see the theory of OSI it is I mean it's extraordinarily complex redundancy कहाँ पे आ जाती है when we talk about functions like addressing error control flow control these functions are repeating in 2-3 layers whereas it's not required this can happen only in the higher layers okay so these were the flaws in the OSI model that is why we term it as a bad technology I hope you understood Yes, ma'am. समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है
ध्यान दोगे तो समझेगा, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ये। समझ रहा है मैम। Yes, ma'am. समझा मैम। ओके, अभी बैड इम्प्लीमेंटेशन देखो। मैंने बोला ये कॉम्प्लेक्स था सिस्टम, ठीक है, ओएसआई और इसके प्रोटोकॉल्स भी। तो इसका जो इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन था वो बहुत बड़ा था, डिफिकल्ट था और स्लो था। क्यों? क्योंकि सिस्टम कॉम्प्लेक्स था। तो जब सिस्टम कॉम्प्लेक्स था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत टाइम लग गया। इम्प्लीमेंटेशन वाज वेरी ह्यूज एंड डिफिकल्ट आल्सो। सो इसीलिए पीपल एसोसिएटेड ओएसआई विद पुअर क्वालिटी। ओके, ऑल्दो ओएसआई इम्प्रूव्ड ओवर टाइम, लेकिन उसका जो इमेज था वो रह गया। जो देखो, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो या जो उसका फर्स्ट इंप्रेशन था वो रह गया, वो इम्प्रूव। मैं बार बार तुम लोग को ये बोल रही हूँ कि ओएसआई वाज इम्प्रूव्ड, लेकिन इट एवर गॉट एनी चांस टू बी एक्चुअली बी एज फेमस एज टीसीपी/आईपी in terms of usage, practical usage. Okay, so it was not, it was the implementation was actually inefficient. So that is why मतलब वो क्या बोलेंगे इन योर लैंग्वेज, पोपट हो गया ओएसआई का। ठीक है, एंड देन लास्टली बैड पॉलिटिक्स। बैड पॉलिटिक्स में सी टीसीपी/आईपी वाज रिलेटेड टू बर्कली यूनिक्स, एंड यूनिक्स वाज वेरी फेमस दैट टाइम। उसका यूनिक्स का जो रेपुटेशन था उसको चलते लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, और इसमें मतलब टीसीपी/आईपी में। टीसीपी/आईपी वाज लिंक्ड टू यूनिक्स, और यूनिक्स वाज रेप्यूटेड among the academicians and research scientists and all. So people associated TCP/IP with Unix, and उसका जो goodwill था वो TCP/IP को भी मिला, and people started using it. Whereas OSI model was primarily, associated with European government, European communities, and later on to the US communities. But they, and so so people thought that OSI is a political research and TCP/IP is Aam Aadmi research. Got it? Got the difference? यस मैम। हाँ, तो अभी अगर यस, सो अभी अगर कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी पॉलिटिशियन अगर एक अगर एक यूनिवर्स लेवल या वर्ल्ड लेवल कुछ स्ट्रेटेजी लेके आएगा भी, पीपल विल नॉट बी वेरी happy or very keen to use it, because we always relate politics to being selfish, that they might be having their own personal goal of earning money. ये तो politician ने किया है, जरूर पैसा कमाने के लिए किया रहेगा, we tend to think that way, right? And so people also thought about OSI in the similar way, and they decided not to use OSI, rather they decided to use TCP/IP. Understood? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. politics के game में OSI was never successful. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Now let's have a look at फटाफट. Let's have a look at the critic of TCP/IP model. Firstly, it does not. Almost मैंने ये explain कर दिया है तुम लोग को पूरा. ये सिर्फ एक textual language में. Let's just see. I told you it does not distinguish between service interface and protocol. I hope this point is clear to everybody. Is this point clear to everybody? Model, Yes, ma'am. we are talking about the disadvantages of TCP/IP model. TCP/IP does not distinguish between service interface and protocol. We have already discussed this. Then TCP/IP is not much of a guide for designing new networks using new technologies. TCP/IP को एज अ गाइड आप नहीं यूज कर सकते कि इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो. गाइड मतलब रेफरेंस किसका अच्छा है? OSI अच्छा है. ठीक है. TCP model is, see why it cannot be used much of a guide, because TCP/IP का इतना थियोरी, रिटर्न थियोरी, इतना उसके बारे में रिसर्च वगैरह कुछ लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेड कम है, ज्यादा नहीं है.
इसीलिए OSI को एज अ गुड रेफरेंस मॉडल ट्रीट करते हैं rather than TCP. ठीक है. TCP/IP model is not at all general, poorly suited to describe any other protocol stack. Bluetooth example was given earlier. Now, Bluetooth requires a simple point-to-point connection between two devices. It does not require such a big network connection of TCP/IP. So, TCP/IP का जो protocol stack है will not be used in Bluetooth stack. Okay. The fourth layer in TCP/IP, which is host to network layer, यानी जो last layer है, it's not actually a layer in the normal sense. मतलब उसके बारे में कुछ ज्यादा बताया ही नहीं है. There is no theory. So what to interpret? होस्ट टू नेटवर्क, इसका इंग्लिश मीनिंग अगर तुम निकालोगे तो होस्ट को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, तो वो इंटरफेस जैसा समझ में आता है. लेकिन लेयर और इंटरफेस के बीच में फर्क TCP/IP ने बताया ही नहीं है, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. A good software engineering practice is to differentiate clearly between layer, service and protocol, which TCP/IP has not done. ठीक है. Now, TCP/IP model does not distinguish the physical and data link layers also. They are completely different. Physical layer का काम क्या है? वो सारे connections है, उसको touch कर सकते हैं. You can see the wires, you can see the the pins and all, right? And data link layer का काम क्या है? उसको frames में convert करना, start and end of the frames को mark करना. दोनों अलग है, लेकिन यहाँ पे कुछ distinction नहीं है, दोनों को साथ में डाल दिया है. So it's kind of little haywire, little confusing. Okay. Many protocols were ad hoc. See, if you talk about TCP/IP, the two protocols TCP और IP ये एकदम flourished है as protocols. But if you talk about, let's say for example in the application layer, Telnet, जब Telnet बनाया था, ये प्रोटोकॉल बनाया था, वो पता है एकदम वो टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर, एकदम पुराने जमाने के जो सिर्फ टेक्स्ट को जानते पहचानते, वो उसको कनेक्ट करने के लिए बनाया था. वो ग्राफिक यूजर इंटरफेस के लिए बनाया ही नहीं था, तो वो उसके लिए यूज हुआ ही नहीं. सो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स TCP/IP में एडॉक बनाए थे. ऑब्वियसली उसमें एडवांसमेंट्स हुए हैं, नए नए प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ TCP/IP कि ज्यादा सोचा नहीं प्रोटोकॉल बनाते वक्त, एडॉक बनाते गए. ठीक है. So that is one of the disadvantages of TCP/IP protocol. But again, I'm telling you that those protocols were improved further. है ना? I hope the disadvantages are clear. Yes, ma'am. I would advise you all to just I would advise you all to just go and read the text. One second.